मेरे साथ है धन्यवाद धन्यवाद। विजय नारायण, veteran socialist leader from Benares, and somebody who has been arrested by the government during the emergency, along with George Fernandez, who was underground almost for a year. So Vijay Narayan ji is part of the history of the emergency of 75 to 77 when he got arrested in June of 76. Vijay Narayan ji lives in Benares and he's networked along with across India with socialist colleagues like Joe Fernandez. And आपका स्वागत है विजय नारायण जी. धन्यवाद धन्यवाद. So many thanks. Thank you, thank you. And let me start by asking you about the arrest. आप जौहर साहब के साथ था जब अरेस्ट हो गया था कलकत्ता में. आप कैसे उससे जुड़ा था उस समय? Same day story or with some सेम डे स्टोरी. पहले सेम डे स्टोरी बोल दीजिए, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे. okay. Well, George had come to Calcutta only a few days after emergency, hardly 3 days. On 26th of June 1975, he was in Gopalpur, that is a sea beach in Odisha. Along with him was his wife and son. In the morning, when he found that the emergency has been proclaimed and many national leaders have been arrested, he told his wife, then his son was hardly 2 3 years old, something like that. He told his wife that now I should go underground from here, and I have to go organizing people, mostly socialists, in different parts of the country. It was just a good luck that local police did not know who this pair is. I mean, George Fernandez, his wife, and his son. He changed his dress. He dressed like a fisherman, Udia fisherman, and left for the railway station. There he caught the train and directly came to Calcutta. Here he आप उसका समय कलकत्ता में था क्या? हाँ, कलकत्ता में वो he met his friend and a socialist colleague, Mr. Vidyasagar Gupta. Vidyasagar Gupta used to stay at Alipur, New Alipur. He had a big bungalow. He's still alive, and he must be remembering George, particularly today. It was probably the same date when he was arrested in Calcutta. Okay. He went directly to the house of his friend, Mr. Vidyasagar Gupta, and he told him that I have to go to Patna immediately. And he had no money also. So Vidyasagar Gupta arranged some money. He called a socialist colleague, Mr. Ram Avatar Umrao. He was a teacher and a very committed and full-timer socialist.
he told Umrao to go to Patna along with George. He immediately gave him a dhoti and kurta, which he used to wear, Okay. so that the people could not recognize George. Okay. He, along And, with Vijay ji, that is the how he got out is this thing. But अब बोल दीजिए कैसे अरेस्ट हो गया, हिंदी में बोल दीजिए कैसे अरेस्ट हो गया उस दिन. हाँ, अपने एक मित्र राम अवतार उमराव के साथ वो दोनों लोग बिहारी बन के, धोती पहन के और कुर्ता पहन के, ये लोग जनरल कोच में कलकत्ता में एक पटना की ट्रेन में दे बोर्डेड. पटना में जाके जब पटना पहुंचे तो ऑल हिज फ्रेंड्स, मोस्टली एक्टिविस्ट्स, were arrested. They were already in jail. He could meet very few of them and discussed his plan. From there, he came to Varanasi. In Varanasi, he went to meet his friends in Gandhian Institute of Studies, which was later on. आप उधर था उस समय? मैं बनारस में था. आप मिला था? हाँ, Gandhian Institute people informed me, though I was also hiding, but I had also some very good friends there who were active in JP Andolan. From this place, George released his first letter in the name of the nation. Okay. Can you give 20? He came out from the institute and visited Ganga Ghat in search of the people. अब हिंदी में बोल लीजिए, हमारा प्रोग्राम दोनों साइड में इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोल लीजिए. जॉर्ज गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज में आए और वहां से अपने मित्रों की तलाश में और मुझे भी खोजते हुए और साथियों को खोजते हुए वो इंस्टीट्यूट में 2 दिन रुके. He released his first letter in the name of the nation that people should organize and oppose emergency. It is in fact, as he told, a dictatorship, a dictatorial attitude of the then government of Mrs. Indira Gandhi. ये लेटर था, ये फेमस हो गया बाद में, डियर मैडम डिक्टेटर करके, ऐसे. Yes, correct. You might remember. आप बनारस से जो सबके साथ गया था या फिर कलकत्ता कैसे पहुंच गए? कलकत्ता वो गोपालपुर सी बीच उड़ीसा से. नहीं आप yes by train he reached Howrah and from Howrah to Alipur. हाँ, पर आपका बोल दीजिए, आप कैसे उसका अरेस्ट हो गया था, आप भी उसके साथ था, अरेस्ट हो गया, वो कैसे हो गया था? देखिए, he visited Calcutta many times in just 1 year. Okay. Yes. He was arrested on the 10th of June. Okay. A year after imposition of emergency. Okay. आप उसके साथ था? नहीं, हाँ, often, not regularly. कलकत्ता में आप था? कलकत्ता में I met him for the first time in Varanasi. नहीं, मैं बोल रहा कि जब अरेस्ट हो गया था उस दिन का बात कर दीजिए.
जब अरेस्ट हो हाँ, गया उस था दिन का आप बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम्म, डायनामाइट स्टिक्स वेयर फर्स्ट डायनामाइट सीज हुआ इन बड़ौदा। हाँ। Baroda story is very interesting, particularly for you and all other journalists. नहीं सर, During सर जो वो तो हमारा विक्रम राव साहब बोल रहे हैं हमारे ये पास। ये किरीट तो भट्ट एंड विक्रम राव, आप the two, आपका वर्शन बोल दीजिए, yes, अरेस्ट कैसे हो गया था, हाँ अरेस्ट का हाँ। दिन और तो उसके साथ। जॉर्ज ने एक जर्नलिस्ट का और एक्टिविस्ट का ग्रुप बनाया था बड़ौदा में, हम्म, बड़ौदा और अहमदाबाद बोथ। हम्म, तो विक्रम राव हैड ए फ्रेंड, a very close friend, named Bharat Patel. हम्म, Bharat Patel was an industrialist, हम्म, and he was using dynamite sticks to break the stone. ओके। And नहीं, Bharat Patel, सर सर मैं बोल रहा था कि हम वो सब स्टोरी विक्रम राव साहब हमको बोल दिया है, आप बोल दीजिए वो मैं अरस का दिन वो मैं कैसे कैसे था। हाँ, यस, उसमें आज का दिन ठीक। ओके अरस ओके। अरेस्ट जो अरेस्ट हो गया कलकत्ता में, आप उसके साथ था। हाँ वो हाँ, दिन मैं कैसा था? उसके साथ कलकत्ता में लास्ट 3 months था कंटिन्यू। ओके। इस मार्च, अप्रैल, May, and up to 10th of June. And I used to visit people, particularly in UP and Bihar, to convey the message of George and keep them in contact. उधर संपर्क होता था। तो it was Rudolf Rodrigues. Rudolf Rodrigues was a member of parliament during the Janata Party regime, and in fact, George had persuaded the Prime Minister to get him nominated to the Rajya Sabha in Anglo-Indian quota. Yes. There are this quota is 2 seats. हाँ, दो सीट का कोटा है। ये मैंने जॉर्ज को कहा था कि in case of any emergency for him, you should contact him and go to his house. After the seizure of dynamite in Baroda, George directly went to him. He stayed with him and he used to change his place very often. ये रूडोल्फ रॉड्रिक्स उनका स्टे मैनेज करते थे। when the very unfortunate factor क्या था कि some George's जो friend from Bombay वो इधर आया था to help him monetarily. Yes. कुछ मनी लेके आया था बॉम्बे से। जॉर्ज ने उसको रिक्वेस्ट किया था कि आई एम पेनीलेस, तो वो आया। वेरी अनफॉर्चुनेटली दिस न्यूज was had reached the secret agent people. हाँ, मैं भी सुना कि फ्रेडी आया था बॉम्बे से। फ्रेडी ये आपने नाम बता दिया, मैं नाम बताना नहीं चाहता था। नहीं, फ्रेडी आया था और उसको ऑलरेडी इंटेलिजेंस ब्यूरो पीपल, सीक्रेट सर्विस पीपल उसको टेल कर रहा था। उसको इसके वजह से उसको पता लग गया कि जॉर्ज साहब कलकत्ता में है, नहीं तो फ्रेडी उधर नहीं जाएगा। ये
फिर ये क्या? यहीं से यहाँ से लीकेज होता है। हाँ, लेकिन आईबी पीपुल हम्म, जॉर्ज कलकत्ता में कहाँ है ये उनको पता नहीं था। हम्म, जब जॉर्ज अरेस्ट हुए आज के दिन 1976 10 जून में, हम्म, उस टाइम में रूडोल्फ रॉडलिस ने उनका स्टे मैनेज किया सेंट पॉल्स चर्च। सेंट पॉल्स चर्च चौरंगी स्ट्रीट पे बहुत बड़ा चर्च है, मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड। हम्म, वहां उन्होंने इंट्रोड्यूस किया चर्च पीपुल से, एंड ही वाज वेरी सेफ, नो डाउट। चर्च पीपुल यूज्ड टू लुक आफ्टर हिम, एंड देयर आल्सो ही वाज वियरिंग ये धोती कुर्ता, बिहार का धोती कुर्ता पहनकर वो चलते थे वहां। और वो रुडोल्फ ने उनको एज ए गेस्ट वो थे। एक इंस्टीट्यूट होता है चर्च में, आप जानते हैं, जेस्यूट्स का, अमेरिकन्स अमेरिकन्स का एक ऑफिस है चर्च में, और स्टे का मैनेज का सुविधा भी है। तो उन लोगों ने जॉर्ज को वहां रखा था, और जिसको भी मिलना आता था उसको मैं मैनेज करता था। बाहर जाना होता था आउट ऑफ चर्च, तब भी मैं ले जाता था। और कभी कभी जो जॉर्ज के सीनियर दोस्त थे, विद्यासागर गुप्ता, वो भी आते थे। रेलवे यूनियन के, ईस्टर्न रेलवे के एक सेक्रेटरी थे, वो भी आते थे। तो जिस दिन ये अरेस्ट हुआ जॉर्ज का, उस दिन कुछ तो लीकेज हुआ था, आप जानते हैं, मैंने बताया था। उसको जोड़ना ठीक नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि कोई जॉर्ज से मिलने दिल्ली से आया था, और आईबी ने उनको चेस कर लिया था। आईबी उनको चेस करके इधर आया कलकत्ता। दैट डे मैं बाहर था। आई अराइव्ड इन द इवनिंग बाई 3 बजे शाम को मैं आया था। जब मैं आया तो मैंने देखा कि चर्च का जो मेन गेट है, उसके बाहर कुछ आदमी अंदर, कुछ आदमी बाहर, इस तरह से वो लॉइटरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। तो मैं गया अंदर, तो जाते ही मैंने जॉर्ज से कहा कि चलिए यहां से निकलिए। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग चर्च के इन एंड आउट लॉइटरिंग कर रहे हैं, आपको मौका नहीं देना चाहिए। और ये हमारा बातचीत, जॉर्ज का आखिरी बातचीत बिफोर जनता गवर्नमेंट was there in that Samaritans office. Samaritans के जो इंचार्ज थे, द पर्सन इंचार्ज, वो विजयन पावा मुनि, a very fine people. He is no more. I also pray for him. तो he came out, और बाहर उन्होंने भी जॉर्ज को कहा, लेकिन बाहर निकलने में जॉर्ज ने देर कर दिया। He took at least an hour. In the meantime, IB people entered that office, the Samaritans office. And then George, विजयन पावामुनि और मैं, हम लोग उसी ऑफिस में बात कर रहे थे। वो लोग आ गए, तो उन्होंने विजयन पावामुनि से पूछा, हु इज दिस जेंटलमैन? तो उन्होंने कहा कि ये प्रोफेसर राजशेखर फ्रॉम इलाहाबाद।
to IB people asked him, क्या आप कोई रजिस्टर मेंटेन करता है, कौन आता है कौन जाता है? He showed his register. Raj Kishore Rajshekhar, his name was entered there in the register from Allahabad. Then the IB people asked Vijayan Pavamuni कि जॉर्ज का कुछ सामान भी है क्या? Yes. विजयन पावामुनि डिड नॉट एग्जैक्टली नो कि वो उसमें क्या है. इन गुड फेथ उसने लाके वो ब्रीफकेस आईबी के लोगों को दे दिया. तो उसमें जॉर्ज वॉज कीपिंग हिज रेलवे मेंस प्रेसिडेंट्स ID card and railway pass. After वो उनको मिला जब, तो they all jumped with joy. This is George, this is George. But in fact, nobody could recognize him in that dress. He was sitting there. मैं सुना है कि उसने दाढ़ी वाड़ी बना के रखा था. हाँ, वो दाढ़ी बना लिया था, बाल थोड़ा बड़ा बड़ा था. अच्छा. वो शेव कर लिया था. दाढ़ी भी था. हुआ, हाँ, एक उसमें जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर सम देश पांडे अभी मोस्ट प्रोबेबली इज अलाइव एंड इज लिविंग इन retirement in Mumbai. Deshpande told George that he, as an intelligence officer, used to cover George's meetings and programs and strikes in Bombay. But he too could not recognize him. वो जॉर्ज को पहचान नहीं पाया. लेकिन जब वो रेल का पास मिला तो जॉर्ज वो देखकर वो भी जंप कर गया कि मैं पहचानता हूँ, यही जॉर्ज है. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. इसमें ड्यूरिंग दीज टॉक्स विद इंटेलिजेंस पीपल, अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज स्पोक इन मराठी ए फ्यू लाइन्स. Okay. वो तो ऐसे बात किया है या देशपांडे जी ने कुछ पूछा उसको? देशपांडे ने पहले अपना नाम बताया. ठीक है. देशपांडे most probably maybe the reason that George thought he must be knowing Marathi. But George was disturbed after Vijayan Pavamuni had brought his small briefcase. This Deshpande, giving full respect, rather with full respect, said, जॉर्ज साहब, अब हम आपको छोड़ेगा नहीं. और जॉर्ज बोलते रहे कि नो आई एम नॉट जॉर्ज फर्नांडिस, बट they said that you are under arrest, we will take you to the police station.